Members of RAV, Director RAV Dr. Vandana Siroha ma'am, Gurujans, I welcome you all for the intellectual session of Gyan Ganga's webinar series. Today's guest speaker is Dr. Jaishuk R. Makwana sir, Dant Chikitsak Guru, Rajkot, Gujarat, who has joined us today in the 2015th episode of this Knowledge Box. I, Dr. Riya Goyal, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would like to express our heartfelt gratitude and our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for the sustenance of the series. Respected Vaidya Shri Devendra Degunaji, President GB RAV, respected Vaidya Shri Rajesh Katocha, Secretary Ministry of Ayush, Government of India, respected Dr. Vandana Siroha ma'am, Director RAV. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantri. Namami Dhanvantri Devam Surasudevan Padma Kechalas Vedityanasham Tata Sham Vidoshadina. Om Dhanvantri Namah. Now, I would like to introduce today's expert, Dr. Jaishuk R. Makwana sir, who is going to throw the light on the topic of tooth extraction by Jalandhar Bandh Yoga. I would like to introduce about sir. Sir is the best consulting Ayurvedic dentist within the India. He is the most popular for tooth extraction without anesthesia. He has completed his BMS in 1986 from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. And his journey of Ayurvedic dentistry was started when he joined as a Dant Vaidya Vishad Post Graduation Certificate course at Rajkot. On 17 July 1996, he established first Ayurvedic dental clinic in Rajkot. Sir has been recognized as the CRAV Dant Chikitsak Guru RAV in 2011. More than 3,000 free Ayurvedic dental camp was organized by Dr. Makwana in 14 states of India. More than 3 lakh teeth extraction were done by Jalandhar Bandh Yoga, and more than 55 doctors learned the Jalandhar Bandh Vidya from Dr. Makwana sir. Many students are coming from India as well as abroad. Sir has also nominated as counseling member in the GBAE from 2017 to 2023, founder of Divine Charitable Trust for Health and Education Rajkot. Sir is the ex-state secretary of Arogya Bharati Gujarat, ex-member of All India Executive Committee of ABVP, Vice President Bharat Tibita Singh Gujarat. Now I would like to introduce today's guest speaker. Now, sir, I would like to invite you for the session. We can proceed with the lecture. Oh. Sir, you can start with the lecture, sir. Okay, thank you. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के यह वेबिनार में उपस्थित वंदनीय माननीय गुरुजन, विद्यापीठ के अध्यक्ष पद्मभूषण जी, आरएवी के डायरेक्टर माननीय डॉक्टर वंदना मैडम, आयुष के सेक्रेटरी पद्मश्री राजेश कोटेचा जी, आयुष के सलाहकार डॉक्टर मनोज मिस्त्री. Sir, your voice is still breaking, sir. I apologize. Your voice is still breaking, sir. Kindly go to the unstable, stable connection, please. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. 1 second. અવાજ નથી આવતો. अभी आ रहा है आवाज? अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है आवाज आपका. स्टार्ट कर सकते आ हैं. रहा है? जी. ओके. आरएवी के सभी सीआरएवी के पूरे भारत से अभी जो वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं वो सभी छात्र, भगिनी और बंधुओं, हर बार की तरह आज भी यह वेबिनार का जो विषय है, जालंधर बंद योग से बिना इंजेक्शन या तो बिना दवाई
दांत निकालने की जो सरल विधि है उनके बारे में सबको अवगत कराना। आप सब गुरुजन तो ये चीजें हर बार हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये विधि आपको दिखाते हैं लाइव, इसलिए सबको पता है। लेकिन जो नए नए छात्र जुड़े हैं इस साल, तो उनके लिए जो पूरे भारत में वो कहीं ना कहीं से बीएमएस किया है, उन्होंने शायद अपनी कॉलेज में कहीं नहीं देखा होगा, या तो किसी किसी ने देखा होगा। तो इसके लिए हमने आज का जो विषय है, टूथ एक्सट्रैक्शन विदाउट एनेस्थेसिया विथ सपोर्ट ऑफ जालंधर बंद योगा। आप सब जानते हैं कि भाई शालक्य तंत्र में मुख रोग, चक्षु रोग सब आता है, लेकिन जो दंत रोग है उसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि दांत की जो डिग्री है वो ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं कि बीडीएस डॉक्टर जो है वही दांत का काम कर सकते हैं। कोई बीएमएस डॉक्टर दांत का काम करने के लिए या तो डेंटल क्लिनिक करके बैठे, ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं अभी अपना थोड़ा दंत विद्या का मतलब अ, जो परिचय है वो थोड़ा दूंगा, इतिहास है वो थोड़ा बताऊंगा, और बाद में मैंने अभी मरीज को भी बुलाया है, वो आप सबको डेमोन्स्ट्रेशन करके जालंधर बंद टूथ एक्सट्रैक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। वैसे अभी मेरे परिचय में बोला गया कि 1996 मतलब 1996 से डिवाइन डेंटल हेल्थ सेंटर करके मैं राजकोट में आयुर्वेद चिकित्सालय, दांतों का चिकित्सालय चलाता हूँ। मुझे गर्व है कि प्योर आयुर्वेद डेंटल प्रैक्टिस करता हूँ, और साथ में प्रतिमास करीब करीब 10 से 12 स्थानों पर पूरे हमारे यहाँ सौराष्ट्र एरिया है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें या तो सौराष्ट्र के अलावा भी और प्रांत में भी मुंबई है, नासिक है, ऐसा कहीं न कहीं जाके हमारा आयुर्वेद का जो अपनी दंत विधि है उसके प्रचार प्रसार हेतु कैंप लगाता हूँ। आज आप सब जालंधर बंद योग से जो दांत रिमूव करने की चिकित्सा है वो जानने के लिए उसको बताने के लिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। लेकिन आप सबको ये अवगत कराऊं कि ये परंपरागत चिकित्सा है, इट इज ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। मतलब अपना आयुर्वेद का जो भी शास्त्र है, अष्टांग हृदय है कि चरक संहिता है कि सुश्रुत संहिता है, कहीं भी इनका उल्लेख नहीं मिलता है कि जालंधर बंद से टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसा कोई श्लोक नहीं है। उसी तरह हठ योग जो मतलब योग शास्त्र है उसमें भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है कि वे जालंधर बंद से टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैंने परंपरागत शब्द पे जोर दिया है। मेरे जो गुरु थे परम वंदनीय लाभ शंकर शुक्ल जी, और उनके भी गुरु थे ज्ञानानंद भारती जी। तो ये गुरु परंपरा से ये विद्या का आरंभ गुजरात से ही हुआ है। जब ये विद्या का प्रारंभ हुआ होगा तो हमने सुना है कि भाई जो हिमालय निवासी संत थे जो ज्ञानानंद भारती जी, वो पूरे भारत में घूमते थे, ऐसे गुजरात में आए और उन्होंने 5-6 लोगों को ये विद्या सिखाई। उनमें से एक हमारे गुरु थे, दूसरे शशिकांत महाराज करके थे, दूसरे तीसरे मतलब वो जो लोग भी थे वो सौराष्ट्र के थे, 1-2 लोग इंदौर के भी थे। तो इस तरह गुजरात में ये विद्या का प्रचार प्रसार काफी सालों से, करीब 50 साल से भी ज्यादा हो गया ये हो रहा है। और मेरे जो गुरु थे उन्होंने 1993 में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में से मिलके अपना जलाराम डेंटल कॉलेज करके आयुर्वेद डेंटल कॉलेज का स्थापना किया। 94 में मतलब सेकंड बैच में मैंने ये दंत विद्या विशारद का कोर्स किया, और उसके बाद 2011 तक ये कॉलेज चली। तो मेरा कहना का विषय ये है कि उसको राज्य आश्रय मिला। ये जो परंपरागत विद्या है, ट्रेडिशनल साइंस है, उनको हमारे गुरु ने राज्य आश्रय दिलाया। जो हमने दंत विद्या विशारद का जो कोर्स किया है वो 1 साल का पूर्णावधि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स था। और उनमें से हम 85 अभी तक डेंटिस्ट जो अभी आयुर्वेदिक डेंटिस्ट बने हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं पूरे भारत में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं या तो जालंधर बंद से काम करते हैं। मैंने लास्ट साल का जो बताऊँ आपको, तो 2024 में सिर्फ 1 साल में
158 डेंटल कैंप लगाए पूरे भारत में, उसमें 5,690 करीब डेंटल ओपीडी किया है और 1,600 करीब दांत जालंधर बंद से निकाले। आज तक तो 1995 से लेके अभी तक 20-25 साल में तो मैंने करीब 4,000 से ज्यादा कैंप लगाए होंगे और 3 लाख 3.5 लाख जितने दांत बिना इंजेक्शन निकाले हैं। तो ये जो जालंधर बंद शब्द जो आया है और जालंधर बंद से दांत उखाड़ते हैं, उसके बारे में जो हम बताते हैं सबको, तो सबको आश्चर्य होता है। जनरल पब्लिक को तो पता भी नहीं है। मतलब ये गुजरात हमारे यहाँ आसपास में सभी ये 2-3-4 दंत वैद्य है वो काम करते हैं, इसलिए सबको पता है। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो आयुर्वेद में डेंटिस्ट्री होता है ये भी पता नहीं होता है। चलो जनरल पब्लिक को तो पता नहीं, लेकिन अपने वैद्य मित्रों को भी या तो अपने डॉक्टर को भी, किसी को ये आयुर्वेद में डेंटिस्ट्री आते हैं इसी बारे में पता नहीं है। तो पहले तो हम सब जान ले कि आयुर्वेद की ट्रेडिशनल थियरी है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जिसमें कुछ न कुछ नया नया होता है। उनमें से एक जालंधर बंद योग से दंतोत्पाटन है। तो इसके बारे में पूरा हम आज चर्चा करेंगे कि भाई दंतोत्पाटन कैसे होता है और दंतोत्पाटन का बेसिक सिद्धांत क्या है इसमें, कि बिना इंजेक्शन में ये निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये जालंधर बंद शब्द समझना चाहिए। कभी कभी किसी को लगता है कि जालंधर बोलते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि जालंधर एक सिटी का नाम है। जालंधर मतलब उसका अर्थ समझना पड़ता है। जो हठ योग में 3 प्रकार के योग बताए हैं, हम सब जानते हैं। त्रिबंध बताए हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद एवं जालंधर बंद। तो शरीर का जो 3 पार्ट है उसमें जालंधर बंद है वो ऊपर के पार्ट, मतलब क्लेविकल्स बोन जो अपना होता है उसके ऊपर, गले के ऊपर की जो भी व्याधि है उसके लिए दिया हुआ है। उनके लिए जो 3-4 मेन श्लोक है उसके बारे में अगर हम बताए तो ये जो जालंधर बंद शब्द है वो शिरा रूपी जाल है, जो अपना शरीर में नर्व सिस्टम है, अपना शरीर में जो नाड़ियां सब चलती है, या तो शिरा है, धमनी है, वो सबको सब जो जाल रूपी जो पूरा फैला हुआ है उनको कंट्रोल करना, उनको बंधन करना, उनको बंध के रखना, वो जालंधर बंद का मुख्य काम है। ये योग करने से मतलब क्या क्या होता है और योग क्या है उसके बारे में हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका करके जो बुक्स योग की आती है उसमें बताया हुआ है कि कंठ संकोच हृदय स्थापे चिबुकम दृढ़म बंधो जालंधरो ख्योयम जरा मृत्यु विनाशकम। मतलब कंठ को संकोच करके जो योग लगाते हैं उनको जालंधर बंद बोलते हैं। दूसरा एक श्लोक भी बताया है, बदनाति ही शिरा जालम अधोगामी नभो जलम, बदनाति ही शिरा जालम अधोगामी नभो जलम ततो जालंधर बंधो कंठोत दुखोत नाशनम। शिरा रूपी जाल जो है उसको बंधन करता है, और जो जालंधर बंद है वो कंठोत मतलब कंठ के ऊपर के सभी रोगों का नाश करता है, इसलिए इसको जालंधर बंद योग बोलते हैं। एक और श्लोक भी है, जालंधरे कृते बंदे कंठ संकोच लक्षण, जालंधरे कृते बंदे कंठ संकोच लक्षण है ना पीयूषम पतत यज्ञो न च वायु प्रकोपयति। मतलब जालंधर बंद लगाने से वात पित्त कफ तीनों दोष ये जो प्रकोप प्रकोप नहीं होता है। ये जालंधर बंद का कार्य भी बताया है। एक और श्लोक भी है, कंठ संकोच लक्षण है द्वे नाड़ियों स्तंभे दृढ़। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं, तो दोनों नाड़ियों को स्तंभन करना, मतलब जो शरीर में ईडा और पिंगला दोनों नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी, मतलब कंठ संकोच लक्षण है। ये कंठ को संकोच करके जो बंद लगाते हैं उसमें दोनों नाड़ी का बंधन होता है। और साथ में जो चक्र होते हैं शरीर में, मध्य चक्र इदम ज्ञेयम षोडशाधारम बंधना, मध्य चक्र और सुषुम्ना नाड़ी और सब 16 प्रकार का जो हमारा आधार है वो सब बंधन होता है। तो ये सब शास्त्रों में सब दिखाया है, मतलब लिखा है। उसके बारे में जालंधर बंद योग सब लगाते हैं अपने शरीर के लिए, कुछ न कुछ ऋषि मुनि भी लगाते होंगे। हमें ऐसा लगता है कि एक समय में जो दांत निकालने का तरीका है वो कुछ ऋषि मुनि जब उसका खुद का कुछ ट्रीटमेंट करना होगा या तो गले के ऊपर की कोई भी व्याधि होती होगी तो योग से जब मिटाना होता है तो वो जालंधर बंद लगाते होंगे। मैंने काफी
मतलब संतों को, ये योगियों को मिला हूँ। जो ऋषिकेश वगैरह में जो योग की कोर्स वगैरह चलता है उसमें भी गया हूँ। काफी लोग ऐसे लेखक भी है जो योग के ऊपर पुस्तक लिखे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं उनको हमने मिला तो वो बोला कि नहीं, कहीं हमने देखा नहीं है कि दांत निकाल सकते ऐसा कुछ लिखा है। तो दांत निकालने का ये तरीका है, शास्त्रोक्त रूप से जालंधर बंद क्या है और जालंधर बंद कैसे लगता है वो सब श्लोक में वर्णित है, लेकिन बाद में उसके लिए दांत कैसे निकाला वो परंपरागत रूप से यहाँ आया है। तो हमारे गुरु ने जो परंपरा स्थापित की, उनके गुरु ने भी शायद स्टार्ट किया और लाखों दांत उन्होंने भी निकाले, सब लोगों ने मिलके। तो ये जो परंपरा इंडियन थेरापी जिसको हम बोल सकते हैं, इंडियन डेंटिस्ट्री हम बोल सकते हैं, उनमें आयुर्वेद को सम्मिलित इसलिए किया कि योग के नजदीक आयुर्वेद है। और उनकी जो बाद में जो दवाई वगैरह, मतलब ये आयुर्वेद में ही, उन आयुर्वेद की दवाई से ही काम करते थे, इसीलिए ये आयुर्वेद में डेंटिस्ट्री आ गई। वरना ये मोस्ट एंशियंट इंडियन डेंटिस्ट्री हम बोल सकते हैं कि भारत में ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जो लुप्त होने जा रही है, या तो लुप्त हो गई है, हो चुकी थी। उनको ये गुरु परंपरा से थोड़ा हम बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और शायद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और ऐसी संस्थाएं जो बड़ी बड़ी अपनी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये बचाने के लिए भी काफी हमको, मतलब लोगों को ये विद्या बचाने के लिए सपोर्ट किया है। और ये विद्या बचाने के लिए ये दंत चिकित्सा अपने आरएवी में भी 2011 से शुरू किया है। 2011 तक हमारी जो आयुर्वेद डेंटल कॉलेज थी हमारे गुरु की, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करवाती थी। तो उनमें उन्होंने उनमें से 85 आयुर्वेद डॉक्टर ने ये विद्या प्राप्त की है। और उनके बाद ये 2011 से जब समझ लो कि मैं आयुर्वेद डेंटिस्ट्री के बारे में सभी आरएवी के, सीआरएवी के जो छात्र है उनको पढ़ाता हूँ। साथ में और डॉक्टरों को भी ये विद्या के लिए सिखाने के लिए भी प्रयत्न करता रहता हूँ। और इनके लिए मैं पूरा निःशुल्क सब जगह दंत चिकित्सा शिविर भी लगाता हूँ। ये मैंने आपको पूर्व भूमिका दिखाई, बताई। और अब मुझे लगता है कि मेरे पास जो दो मरीज अभी उपस्थित है, वैसे तो ये मरीज का जो दांत निकालना है वो आप सबको मेरे स्टूडेंट के जो मोबाइल है उनसे आपको लाइव दिखाएंगे। तो मुझे लगता है 1 मिनट का सिर्फ बीच में टाइम टाइम में लेता हूँ वो सेटिंग करने के लिए। और साथ में हम सब वहाँ पेशेंट को है उनके ऊपर हम लाइव आपको सबको दांत कैसे निकालते वो बताते हुए दिखाता हूँ। ये मरीज उनको एक दांत निकालना है, वो खास में यहाँ पर टाइम लेके आए हैं। उनका पहले हम सम्मान करके फिर उसका दांत निकाल।
ये जो अभी मैंने श्लोक बताए वो श्लोक के अनुसार ये पटल पे उसको मतलब एक वुडन स्टूल है उनके ऊपर मरीज को बिठाया जाए और पीछे से मैं उसका मतलब मैंने पोजीशन लिया हुआ है। आप सबको दिख रहा है कि नहीं? कौन सी? सर दिख पा रहा है, सर दिख पा रहा है। जी सर आप। ये जो अभी ये उसका एक दांत निकालना है अभी ऐसे यस जैसे अभी हमने बोला ना कि कंठ संकोच हृदय स्टाफ है चिबुकम ब्लेडर और उसके जो लेफ्ट और राइट है दोनों है, उसके ऊपर पकड़ेंगे पकड़ के वो बैठते हैं इसलिए ईदा पिघला नाड़ी बंद है। और मैं पीछे खड़ा हूँ तो उसके पीछे से मैं ये पाँव लगा के पटना इसलिए रखा है कि पाँव उसमें जा सके तो स्पाइनल कोड जो उसका जो करोड़रज्जु है स्पाइनल कोड है तो सुषुम्ना नाड़ी हम बोलते हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा और यहाँ यहाँ ब्रह्मरंध्र के ऊपर प्रेशर देंगे और मैंने अभी उसके लिए फोर्सेप तय डायग्नोस कर दिया है इसलिए फोर्सेप तय करके रखा और ये कंठ संकोच हृदय करने के लिए ईडा और पिंगला नाड़ी यहाँ से भी जो अपनी फिफ्थ क्रेनियल नर्व से पांचवी नाड़ी है वो बंद होगी ये दोनों तरफ से भी प्रेशर आएगा मतलब ये पूरा एक बंद लगेगा और ये बंद लगने के बाद उसको जो दांत निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अभी मैं जो प्रक्रिया करता हूँ उसमें तो परंपरागत रीति से जो कंठ संकोच हृदय वाला श्लोक में आया है वो है शिरोधुनन मतलब सिर को थोड़ा हिलाना पड़ता है कंठ को संकोच करके हृदय तरफ स्थापित करेंगे और सिर को थोड़ा हिलाएंगे तो सिर हिलाने से हमेशा मतलब जो यहाँ यूनिवर्सिटी में जितना रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक एक दो थीसिस में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि उनकी जो पांचवी नाड़ी है यहाँ से बंद होती है जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं तो जो यहाँ सब जगह सेंसेशन पहुंचाती है और बाकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है उनके ऊपर उनमें तरंग उत्पन्न होता है इसके कारण थोड़ी देर के लिए उसको पता नहीं चलता तभी ये जो दांत निकालने का जो काम है वो शुरू करूंगा। નીચું જુઓ ગરદન ઢીલી મોટું કહો કે રૂપિયો કરજો કાઢી લો ને એટલે દવા આપે છે ને એમને કોગળા કરવા निकल गयो कैनाइन टूथ वो बहुत मजबूत था लेकिन उसको डेंचर बनाना इसलिए निकालना था और अभी उसको जो आयुर्वेद की दवाई है उसका पूरा करवाएगी जो रक्त स्तंभक योग ये दूसरे मरीज मार्केटिंग 75 ईयर्स ओल्ड हीरा बापा करके है हमारे मरीज उनके तो मैंने अभी तक मतलब सब दांत महीने निकाले हैं ज्यादातर बिना इंजेक्शन ही उनको दांत निकालने हो जाए उनका सम्मान करके फिर उसका हम दांत निकाल के दाढ़ है उसकी वो जो मरीज था उसको कैनाइन मतलब 3 नंबर का टूथ था इनको मोलर टीथ है मतलब नीचे लास्ट से दूसरा 7 नंबर का है
तो इसीलिए इनके लिए हमने ये यूनिवर्सल मोलर फोर्सेप है वो पसंद किया है। वो ज्यादातर अपर मोलर फोर्सेप ही उपयोग में आता है। लोअर दांत निकालना है तो भी अपर दांत में निकालना है तो भी अपर। अभी इनका भी बंद करो मोटू, नीचे जो गर्दन के लिए मोटू पर। દાંત કાઢી લઉં ને એટલે પાણી કોગળાનું આપે ને એ મોલર ફોર્સેપ से मोलर दांत 3 रूट वाला है। बराबर કોગળાનું પાણી તમને પણ આપે ને કોગળા કરી હા ખોલ। ના એ આમને પણ ઘણા દાંત ઓકે છે બરોબર કાઈ નથી દુખવા ખબર રહે कुछ नहीं दर्द वगैरह ये भाई की तो मार दांत भी आए के क्या ये बोल ओके दादा हमने ड्रेसिंग કરી દીધું। तो ये दांत निकालने का मैंने लाइव आप सबको दिखाया है। अभी मुझे लगता है कि आप सबको कुछ न कुछ प्रश्न होते होंगे वो जिसके बोलते हैं ना एफएक्यू के कारण आप ऐसे दांत कैसे निकल सकता है वैसा सब आपको मन में प्रश्न होते होंगे। तो अभी जो मरीज के ऊपर हमने प्रैक्टिकली किया वो प्रैक्टिकल हम बार बार करते रहते हैं। ये वेबिनार पूरा होने के बाद अभी जो कल मेरा एक कैंप था बहुत बड़ा जहाँ मैं 25 साल से कैंप कर रहा हूँ हर महीने, वो कैंप में मैंने 4-5 मरीज का भी वीडियो बनाया है। वो मेरे एक छात्र है वो छात्रों के ग्रुप में और मैं खुद गुरुओं के ग्रुप में भी डाल दूंगा क्योंकि लाइव में जितना लिखा होगा उससे ज्यादा आप थोड़ा डिटेल में भी 4-5 और वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जो जालंधर बंद से मैंने दांत निकाला वो 2 टाइप के दांत थे। एक 7 नंबर का मतलब दाढ़ थी और एक 3 नंबर का मतलब आगे का दांत ऐसा हम बता सकते हैं कि कैनाइन दांत जो मजबूत सबसे होता है वो था। जो कैनाइन निकाला वो बिल्कुल मजबूत था। तो आप सबको पहला प्रश्न जहां जहां हम जाते हैं वहां सब लोग पूछते हैं कि आप जालंधर बंद से हिलते हुए दांत निकालते हैं कि फर्म टूथ होता है जो मजबूत होता है वो भी निकाल देते हैं। तो उस समय मैं सबको बोलता हूँ कि ज्यादातर तो मजबूत दांत होते हैं वो बचाना होता है। अगर जरूरत पड़ी अगर किसी को जैसे अभी ये जगदीश भाई आए थे उनका दांत एक ही था और मजबूत था लेकिन उनको अभी डेंचर बनाना है इसीलिए निकालना था तो इसलिए उनका दांत निकाला। जो दंत चिकित्सक होते हैं बीडीएस डॉक्टर होते हैं
वो इसका आकलन ऐसे करते हैं कि भाई एक 0 डिग्री वाला मतलब बिल्कुल फर्म टूथ था, एक 1 डिग्री मतलब आगे थोड़ा थोड़ा हिलता है, 1 डिग्री वाला मोबिलिटी बोलते हैं। अभी 2 डिग्री मोबिलिटी मतलब आगे भी हिलते हैं और पीछे भी हिलते हैं। और तीसरा है वो 3 डिग्री मोबिलिटी, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ के हिलते। तो ये 3 प्रकार की मोबिलिटी और 4 प्रकार की मोबिलिटी 0, 1, 2, 3 डिग्री उसमें बताई हुई। अभी मैंने जो दांत दोनों का निकाला उसमें एक 0 डिग्री वाला था और एक एक 2 डिग्री वाला था। तो ऐसा है कि भाई किसी भी टाइप का अगर मजबूत दांत होता है तो भी इस विद्या से निकलता है, आसानी से निकल जाता है। तो जालंधर बंद योग से सिर्फ हलते दांत निकालना ऐसा नहीं होता है, किसी भी टाइप का अगर जरूरत हुई तो दांत निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में और बीडीएस अभी डॉक्टर है वो भी सभी दांतों की ट्रीटमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक अपना ओरिजिनल दांत बचे तब तक बचाना चाहिए। तो इसलिए हम भी सलाह तो वही देते हैं जो ओरिजिनल सलाह देना चाहिए, जिसको दर्दी के हित में होता है वही सलाह देते हैं। कभी कभी ये बोलते हैं ना लोग कि भाई सिर्फ आगे के दांत निकालते हैं कि दाढ़ भी निकालते हैं। अभी आपने तो सबने देख लिया कि भी दाढ़ भी निकल सकती है, दांत भी निकल सकता है। लेकिन अक्ल दाढ़ होती है जो विजडम टूथ जिसको बोलते हैं, जो 18 से 25 साल की उम्र में ज्यादातर इरप्ट होती है, आती है यंग एज में। और ज्यादातर वो अगर टेढ़ी होती है, इरप्ट होती हुई दाढ़, तो निकालना पड़ता है और ओरल सर्जन उसको निकालते हैं। तो ऐसी दाढ़ जो फंसी हुई रहती है, जो दिखती भी नहीं है, वो बोन में है, वो जालंधर बंद से क्या वो इंजेक्शन देके निकालना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी दाढ़ जालंधर बंद से हमने निकालते हैं। लेकिन एजेड पर्सन है और उसकी दाढ़ अकल दाढ़ है वो बाहर आ गई है, थोड़ी बहुत हिलती है, तो वो भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। लेकिन जिसको विजडम टूथ का प्रॉब्लम है और अर्ली एज में मतलब 18 से 25 साल के बीच में आई हुई है और उसी समय उसको दर्द करती है और टेढ़ी है, तो निकालना जालंधर बंद से शक्य नहीं है, ऐसा हम सबको बताते हैं। इसके अलावा जैसे ये तो एजेड पर्सन की बात हुई, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं जिसको मिल्की टीथ है, उसको भी अगर जरूरत पड़ती है, कभी कभी वो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं तो एक दो दांत ऐसे होते हैं फंसे रहते हैं, तो उसको निकालना जरूरी होता है। तो ऐसे दांत भी आसानी से हम बच्चों के दांत भी निकाल सकते हैं। उनमें और फायदा ये होता है कि बच्चों को इंजेक्शन की थोड़ा डर रहता है, फोबिया होता है, तो उसको बिना बताए मतलब उसको थोड़ा बिठा के पटले पे ऐसा करके दांत निकाल लेते हैं, तो और आसानी रहती है बच्चों में। तो इस तरह हिलते हुए दांत, मजबूत दांत जालंधर बंद से निकाल सकते हैं। कोई भी दांत निकालना है तो एक ही उसमें मेन चीज होती है कि वो पकड़ में आना चाहिए। कभी कभी दांत टूट गए हैं और टुकड़े बचे हैं तो वो निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता, इसलिए जालंधर बंद थोड़ी देर के लिए लगता है, तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी एक प्रश्न आप सबको ये हुआ होता होगा कि जालंधर बंद से ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि जिसके कारण ये सुन्न हो जाता है, एनेस्थेटिक असर आ जाती है। मैंने अभी बताया कि जो श्लोक है उनका जब असर आता है तो शिरा रूपी जो जाल है उसका बंधन होता है, और शिरोधुनन करने से हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में जो तरंग उत्पन्न होता है, ऐसा हमारे जो थीसिस जो लिखे हो इसमें कहीं ना कहीं बताया है किसी डॉक्टरों ने। तो इसी तरह ये प्रक्रिया लाइव हम देख रहे हैं, जो मतलब ये हम अनुभव करके मरीज का अनुभव बोल के करते हैं कि भी इसको कुछ पता नहीं चलता है, वो तो कंफर्म है कि उसको कुछ मालूम नहीं होता है। दूसरा है कि ये शब्द सबको प्रश्न होता है कि फिर तो ये कितने बार सुन रहता है। जैसे इंजेक्शन देख के दांत निकलवाते हैं तो 2-3 घंटे तक वो ऐसा ही सुन हो रहता है। इसमें ऐसा टाइम का मरीज के हिसाब से मतलब मरीज की प्रकृति और मरीज का जो सत्व है, अवर सत्व होता है इसी के हिसाब से, या तो अच्छे सत्व वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइमिंग है, लेकिन काफी समय तक रहता है। हमने अभी तक इतने दांत निकाले, मैं कभी लाखों दांत निकाले, लेकिन कभी किसी को बाद में पेन हुआ ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। और बाद में जो हम दवाई उसका उपयोग करते हैं, जो आयुर्वेद की दवाई, उनके कारण ब्लीडिंग वगैरह भी स्टॉप हो जाता है। अभी
जहाँ जहाँ शहर में जाते हैं तो ज्यादातर मधुमेह के मरीज आते हैं दांत निकलवाने के लिए कि भाई वो इंजेक्शन दे के नहीं निकालते, ज्यादा डायबिटीज है। शुगर का मरीज जो होता है वो ज्यादातर हमारे पास इसलिए आते हैं कि बिना इंजेक्शन बिना दिक्कत दांत निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वो भी हम आसानी से निकालते हैं। 300 डायबिटीज है, 400 डायबिटीज है, उनका भी दांत निकाला है। लेकिन डायबिटीज का मतलब ये है कि उनके बाद उनको इन्फेक्शन न हो, इसीलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए जो जरूरी है ट्रीटमेंट उसको देना पड़ता है। बाद में दांत निकालने में डायबिटीज इंजेक्शन नहीं देना, इसलिए कोई मतलब नहीं रहता है। अभी ब्लड प्रेशर वाले का भी इसी तरह बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर में हम अगर जालंधर बंद से दांत निकालते हैं तो फायदा होता है। जैसे ब्लड प्रेशर वाले मरीज बीडीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको जो एनेस्थेटिक इंजेक्शन देते हैं उसमें झाइलोकिन विथ एड्रेनालिन आता है। तो एड्रेनालिन के कारण उसको बीपी और बढ़ता है, इसलिए वो नहीं निकालते था। तो झाइलोकिन विथ एड्रेनालिन को छोड़ के जालंधर बंद से अगर दांत निकाला तो उनको बहुत अच्छा रहता है। इसलिए ब्लड प्रेशर वाले का दांत भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और साथ में अगर मरीज को झाइलोकिन की एलर्जी है, अभी एक कैंप में मैं गया था गोंडल में, वहाँ एक मरीज 3 साल से मेरे जैसे दंत वैद्य को ढूंढता था कि कोई ऐसा आए जिसके कारण मैं दांत निकलवाऊं। क्योंकि उनको जब इंजेक्शन देते थे तो सीधा एलर्जी होता था और कुछ न कुछ वो उसको प्रॉब्लम हो जाता था। इसलिए उन्होंने बीडीएस डॉक्टर ने सबने ना बोल दिया था कि भाई आपका दांत हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इंजेक्शन आपको लगाने से एलर्जी है। उनको शायद उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाया था कि जाइलोपिन की एलर्जी है। बहुत कम लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अभी ऐसे मरीज को जब हमने 3 दांत निकाल के दे दिए तो वो तो पूरा मतलब 3 साल से हमको ढूंढ रहा था कि भाई ऐसे कोई वैद्य आए, दंत वैद्य आए कि जिसके कारण बिना इंजेक्शन दांत निकाल सके। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज वाले, एलर्जी वाले है, बच्चे है, या तो किसी को भी दांत निकालना है तो करीब करीब 60% ऐसे मरीज होते हैं कि जिसका दांत जालंधर बंद से निकाल सकते हैं। अभी जो अभी पूरा प्रोसीजर किया उसमें आपने देखा कि हमने डेंटल चेयर हमारी पास में ही पड़ी थी, वो टेक्निकल काम के लिए है, लेकिन ये पटला में बिठा के हम दांत निकालते हैं, जिसको बाजोट वुडन स्टूल बोलते हैं। करीब 9 इंच ऊंचा बाजोट लेके, पटला लेके हम इसलिए निकालते हैं इसके ऊपर क्योंकि बराबर योग लगता है। वो जब मरीज पटले पे बैठता है तो सुखासन में बैठता है, या तो स्वस्तिकासन या तो पद्मासन। तो ज्यादातर पलथी मार के जो बैठते मरीज तो सुखासन जिसको बोलते, जिसको उसको आराम से बैठ सके ऐसे बिठाते। और हमको पीछे से खड़ा रह के उसका दांत निकालना है तो जो पटला होता है, बाजू स्टूल होता है वुडन स्टूल, उनमें पांव रखने की बराबर आसानी रहती है। एक आध प्रश्न ऐसा भी होता है कि ये इसके ऊपर आपने सर पे कपड़ा डाला, जो गमछा जिसको रेड कलर का हमने डाला, वो क्यों डाला? वो कभी कभी गांव में जाते हैं तो वो बोलते हैं इसमें कुछ है, इससे दांत निकलता है, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो शिरोधुनन करवाना है हमको, तो हमने ऐसा मतलब अनुभव किया कि वो शिरोधुनन करवाने में सर की जो ग्रिप होती है वो बराबर आ जाए और इसके कारण वो दांत निकालने में और शिरोधुनन करवाने में आसानी रहे। इसलिए वो हमने एक क्लॉथ फिक्स किया कि ये ऐसा क्लॉथ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे वो ज्यादातर कैंप हम मंदिरों या तो ऐसी संस्थाओं में लगाते हैं कि जहाँ धार्मिक वातावरण होता है। अभी हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर लंदन से आए थे, बीडीएस डॉक्टर थे। वो रिसर्च करने के लिए आए थे, ये जालंधर बंद के ऊपर बिना इंजेक्शन ट्रेडिशनल विद्या है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए आए थे। उन्होंने रिसर्च पेपर में भी ये डाला है कि भाई आप एक कैंप लगाओ मंदिर में लगाओ और एक कैंप ऐसे कोई भी क्लब या तो किसी के ऐसे रूम में लगाओ। उसमें मरीज का जो सत्व होता है वो धार्मिक आस्था के कारण अगर मंदिर में या तो ऐसा धार्मिक स्थान पे होता है तो अच्छी होती है, उसको इसके कारण प्रॉब्लम कम होती है। उन्होंने ये भी पूछा, सर्च किया था कि भाई ये इसका कारण ये होता है कि मरीज को थोड़ी आस्था बढ़ती है डॉक्टर के ऊपर और वैद्य के ऊपर, इसके कारण भी ये रिजल्ट उसमें अच्छा आता है। अगर यही दांत पटले पे बिठाने के अलावा चेयर पे अगर चेयर पे कि ऐसे मरीज भी आते हैं कि जो बैठ नहीं पाते, चेयर पे भी लगाते हैं जालंधर बंद, लेकिन जितना
कटले पे असर आता है उतना थोड़ा कम आता है। अभी अनुभव होने के कारण कभी कभी ऐसे मरीज आते हैं कि जो इसका पाँव में दर्द है वगैरह, बैठ नहीं पाते नीचे, तो उसको हम चेयर पे बिठा के भी दांत निकालते हैं। अभी एक और प्रश्न भी आप सबको होता होगा कि ये दांत निकालने के लिए फोर्सेप कौन सा चाहिए, मतलब ये जो हमने चिपिया लिया वो कौन सा टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए हमने चिपिया लिया। मेरे गुरु तो ऐसे थे कि वो अंगुली से, हाथ से ऐसा दांत करके निकाल देते थे, और एक साथ करीब करीब उन्होंने काफी 25-30 दांत भी निकाले हुए एक ही मरीज के हैं। मेरा भी रिकॉर्ड है 21 दांत एक साथ निकालने का। लेकिन फोर्सेप इसलिए यूज करना पड़ता है कि, और फोर्सेप में भी जैसे डेंटिस्ट है वो ज्यादातर अपर का, लोअर का, आगे का दांत का, मतलब इंसाइजर फोर्सेप, मोलर फोर्सेप, विजडम फोर्सेप, उसमें भी सब अपर लोअर सभी प्रकार के, मतलब पूरा एक सेट 12 फोर्सेप का आता है, वो उपयोग करते हैं। हम सिर्फ 2 ही फोर्सेप उपयोग करते हैं, एक यूनिवर्सल मोलर फोर्सेप और यूनिवर्सल इंसाइजर फोर्सेप। 2 टाइप का ही, आगे का दांत 6, दूध 12, अपर का ही लोअर का, दोनों में अपर का ही काम आता है, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी होती है पीठ पे मरीज को बिठाने की कि कोई भी दांत निकालना है तो उसको पीछे से हम निकालते हैं, पीछे खड़े रह के, तो पूरा सभी दांत का जो अपना मुख है वो पूरा दिखता है। इसके कारण हम कोई भी फोर्सेप पहले सिर्फ मिरर ट्विजर से उसका हम मतलब ये डायग्नोस कर ले। अभी कोरोना के बाद डायग्नोसिस के लिए भी हमने डिस्पोजेबल वुडन स्टिक का उपयोग करते हैं और बाद में फोर्सेप का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह कोई भी दांत निकालना है तो हमको सिर्फ 2 ही फोर्सेप चाहिए, पूरा दांत कोई भी दांत निकाल सकते हैं। अभी एक प्रश्न आप सबको ये भी होगा कि अगर ब्लड थिनर दवाई एस्पिरिन चालू है किसी को, तो दांत निकाल सकते हैं कि नहीं। इसमें हम जैसे एलोपैथिक में भी मना करते हैं, उसी तरह हम भी मना करते हैं, क्योंकि वो बाद का प्रोसीजर है। दांत निकालने के बाद थोड़ा बहुत भी अगर ब्लड शुरू हो गया तो बाद में क्लॉट नहीं होता है। हम जो रक्त स्तंभक योग देते हैं उनसे ज्यादातर ब्लड बंद हो जाता है। जो रक्त स्तंभक योग अभी जो रेड कलर का जो लिक्विड बनाया था, पानी में घोल बनाया था, वो उनका कुल्ला करते हैं तो उनसे ज्यादातर ब्लड है वो बंद हो जाते हैं। जिसमें फिटकरी है और माजूफल है, गैरिक के साथ बनाया हुआ ये घोल है रक्त स्तंभक योग, उनका हम उपयोग करते हैं तो उनसे ज्यादातर ब्लड तो बंद हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड थिनर दवाई चालू है और दांत निकाला तो बाद में 2 घंटे के बाद, घंटे के बाद फिर शुरू हो सकता है, इसीलिए हम उनको मना कर देते हैं। मतलब ये एक चीज ऐसी है कि जहां हम ना बोल देते कि आप पहले जैसे पीडीएस डॉक्टर बोलते हैं वैसे 2 दिन ये दवाई बंद कर दो और बाद में दांत निकालने के लिए आ जाओ। तो एक ब्लड थिनर जिनको चाले उनका दांत नहीं निकाल सकते। दूसरा एक स्पॉन्डिलाइटिस होता है, मतलब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो शिरोधुनन नहीं करवा पाएंगे, इसलिए दांत निकालने में थोड़ा मुश्किल आता है। तो शिरोधुनन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट के लिए भी ये जालंधर बंद लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी सबको होता है कि दांत मरीज को खाना खाने के बाद निकालना चाहिए कि पहले निकालना चाहिए। तो वैसे ज्यादातर मरीज तो खाना खाने के बाद भी निकालते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई उसमें हमको परहेजी नहीं है। लेकिन बाद में जो मरीज को है वो ठंडा और ऐसा जिसको पोचा खाना बोलते हैं, ऐसा लू सॉफ्ट डाइट देने की सलाह देते हैं। हमारे यहाँ जहाँ कैंप लगता है वहाँ हमारे गुरु परंपरा के हिसाब से सबको शीरा खिलाते हैं, मीठा, और आराम से उसी समय, मतलब दांत निकालने के बाद 10-15 मिनट के बाद शीरा खिलाने के बाद ही प्रसाद देके ही भेजते हैं। तो ये एक खाना खाने की जो पथ्य आहार विहार है उसके बारे में भी हमें हम थोड़ा पालन ऐसा करवाते हैं। अभी जैसे बताया कि एक साथ कितने दांत निकाल सकते हैं। अभी तो ये मरीज का 1-2 दांत थे, अभी मैं थोड़ी देर में जो आपको वीडियो भेजूंगा उसमें 4-5 एक मरीज का दांत निकाला है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मैंने 21 का रिकॉर्ड किया है, मेरे गुरु ने तो 21 से भी ज्यादा, मतलब 30-32 दांत निकाला ऐसा मैंने सुना है। लेकिन 10-12-15 दांत एक साथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता है अगर जरूरत है तो। दांत निकालने के बाद जो हम कुल्ला करवाते हैं वो मैंने अभी बताया कि रक्त स्तंभक योग है, जिसमें गैरिक, लोद्र, त्रिफला, फिटकरी और माजूफल ये सब मिला के इसका पाउडर बनाते हैं और ठंडे पानी में मिक्स करके उसको हम कुल्ला करवाते हैं।
इसके बाद एक ड्रेसिंग की दवाई देते हैं, वो भी आयुर्वेदिक है, जिसका नाम है त्रिफलादि कषाय, जिसमें एक पाउडर मिक्स करके पानी में एक काली दवाई बनती है काला कलर की, जिसमें त्रिफला होता है, फिटकरी होती है, हीराकसी, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये 3 चीजें मिली हुई रहती है। और ये तीनों का थोड़ा सा दवाई बनाओगे तो जैसे बीटाडीन दिखता है, ऐसा बीटाडीन जैसी दवाई दिखती है, लेकिन उनके कारण मरीज को ब्लड नहीं आता है और ड्रेसिंग करने के बाद ब्लड भी स्टॉप हो जाता है, पेन भी नहीं होता है। और अगर जरूरत पड़ी तो पेन कंट्रोल के लिए हम जो भी अपनी योगराज गूगल है, महायोगराज गूगल है, या तो हमारे यहाँ जो लोकल में जो गूगल की प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, जो संधिवा में पेन में जो काम करती है, वो सब दवाई में से कोई एक दवाई उनको दे देते हैं, ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। और दांत निकालने के बाद जैसे अभी मैंने बताया कि सॉफ्ट खाना वगैरह तो सलाह देते हैं। तो इस तरह जो दांत निकालने के बाद जो पथ्य क्या है वो भी मतलब कुछ ना कुछ बताते रहते, भाई थूकना नहीं है, वहां अंगुली नहीं लगाना है, पूरा समय तक थोड़ा 1-2 घंटे ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और दांत निकालने के बाद आराम से दर्दी अपना काम कर सकते हैं और सब कुछ आराम से होता है। तो इसलिए ये आसान तरीका है जालंधर बंस योग से दांत निकालना। तो इसके बारे में अभी अभी 1-2 प्रश्न ये भी होता है कि भाई अगर शिरोधुनन करवाते हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको तो शिरोधुनन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मरीज भी आते हैं कि जिसको थोड़ा अगर सिर हिला हो तो चक्कर आने लगता है या तो बेहोश हो सकता है। कभी कभी ब्लड देखने के बाद भी बेहोश होता है, दूसरे का ब्लड भी सिंकोप में चला जाता है। तो ऐसे मरीज के लिए भी हम मतलब होता नहीं है, ज्यादातर हम ध्यान तो रखते हैं, फिर भी अगर हो गया तो उसके लिए हम अमृत धारा जो थाइमल मेंथोल कैम्फर का एक लिक्विड रखते हैं, वो इसको अगर सूंघाते हैं तो तुरंत ही वो ठीक हो जाता है, इस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने जालंधर बंद के बारे में मोटे मोटे सब आपको जो भी प्रश्न होते होंगे ये बताया। अब दूसरी चीज कि अभी मैं डेंटल क्लिनिक चलाता हूँ, तो आयुर्वेद दंत चिकित्सक के रूप में मैं और क्या क्या करता हूँ और कर सकता हूँ। तो अभी मेरा जो डेंटल क्लिनिक है वो सिर्फ दांत उखाड़ने का काम करता है, इसके अलावा दांत बनाने का, मतलब जालंधर बंद से का दांत निकाल दिया, उसके अलावा जो दांत बनाने का काम भी, टेक्निकल काम भी करते हैं। और खास करके जो मसूड़े के मतलब गम्स का जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, सूजन होता है वगैरह के लिए भी हम काम करते हैं। अभी एक सबको ज्यादा डिसीज जो होता है कृमिदंत, जिसको डेंटल कैरीज बोलते हैं, उनके लिए भी वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि भाई रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाओ वगैरह एलोपैथिक डॉक्टर के पास, लेकिन हम भी उनके लिए प्रयत्नशील है कि भाई मरीज को, अभी हम पिछले जो स्टूडेंट आए थे उनके साथ मिलके 8-10 मरीज को रूट कैनाल आयुर्वेदिक तरीके से किया था, जो सुश्रुत में जो श्लोक दिया हुआ है कि भाई कृमि दंत है तो उसका अंदर से सफाई करके उसको भरना चाहिए, या तो ऐसा धूमपान चिकित्सा करवाना चाहिए, नस्य करवाना चाहिए वगैरह सब हमने दिया था। तो वो उसका वो प्रायोगिक अभी है कि भाई ये कुछ न कुछ उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एनेस्थेसिया की जरूरत ना पड़े उसी तरह से हम करते रहते हैं। और खास करके जो नर्वस सिस्टम के पेशेंट होते हैं, जिसको अ, जिसको बोलते हैं ना कि भाई एक नस का दुखावा अगर शुरू हो गया दांतों में से, तो नर्वस सिस्टम का जो दर्दी है उनको हम प्रतिमर्श नस्य और गंडूस, इरीमेदादी तेल का गंडूस करवाते हैं, और अणु तेल का प्रतिमर्श नस्य करवा के काफी मरीज को उसमें भी राहत मिलता है। ज्यादातर जो डिसीज है वो दंत हर्ष मतलब सेंसिटिविटी का भी बहुत प्रश्न होता है, उसमें हम एक पाउडर बनाते हैं, उनको तेल तेल में मिक्स करके उसको गंडूस करने के लिए बोलते हैं, तो उनके कारण भी बहुत फायदा होता है। एक हमारे सौराष्ट्र में ज्यादातर तंबाकू का सेवन होता रहता है, इसलिए जो हनुमोक्ष जिसको बोलते हैं, मुख बंद हो जाता है। और सब म्यूकस फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके लिए भी हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इस तरह जो साध्य रोग है उसमें तो हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और मसूड़े के डिसीज में ब्लीडिंग गम्स है, पायोरिया जिसको बोलते हैं वो है,
रसी आता है, दंत पुपुटक है, ऐसे सभी रोगों में काफी रिजल्ट मिलता रहता है। जो दो चार रोग दांत के मूल के जो असाध्य जिसको बताया है, उसमें त्रिदोषज नाड़ी और महासौशीर ये दोनों असाध्य रोग बताए, और श्यावदंतक, भंजनक और दालन ये 3 रोग असाध्य बताए दांतों के। तो इस असाध्य रोगों में वैसे अभी तो क्या होता है, दांत निकालने के बाद हमको ये करना पड़ता है कि भाई टेक्निकली आप उसको सफाई करके उसके ऊपर कवर बना लो वगैरह, और वो भी हम काम करते रहते हैं। अभी मेरे पास जो मरीज आते हैं उसमें जो मसूड़े के मरीज आते हैं, तो उसमें जो हिलते हैं दांत उसको स्थिर करने का भी आयुर्वेद में काफी अच्छा तरीका होता है। अभी एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने पूना में जब बैंक में काम करते थे तो उन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके सब दांत निकालने पड़ेंगे, लेकिन मैंने फलानी फलानी आयुर्वेद औषध लगाई और 8 दिन में मेरा अच्छा हो गया। तो जब उसको हमने देखा कि कौन से औषध है, तो जो माजू फल है, त्रिफला है, उनका ही उन्होंने मंजन किया था, और जब मसूड़े से दांत हिल गया तो वो स्थिर हो गया था। तो आयुर्वेद का ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट भी काफी लोगों को मिलता है। काफी लोगों को जो सेंसिटिविटी जैसा रोग होता है उसमें भी आयुर्वेद बहुत काम करता है। तो इस तरह पूरी चिकित्सा पद्धति से, मतलब गम्स का डिसीज है उनके लिए भी आयुर्वेद बहुत फायदा कारक रहता है, और दंतोत्पाटन के लिए तो फायदा कारक है ही। साथ साथ मैं डेंचर वगैरह बनाता हूँ, टेक्निकल काम भी करता हूँ, और साथ में जो ब्रिज वगैरह होता है वो भी टेक्निकल काम है, वो सब दांत बनाने का काम भी हम करते रहते हैं। तो इस तरह दंत चिकित्सा का जो भी प्रैक्टिकल और थियरी आपको बताना था मुझे, वो भी आपको हमने बताया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सिर्फ जालंधर बंदा नमस्कार। लगाकर कोई भी वैद्य दांत निकाल सकता है? यस, जालंधर बंद लगा के कोई भी वैद्य दांत तो निकाल सकता है, उसको जालंधर बंद लगाने का तरीका आना चाहिए, और कुछ नहीं। वही वही तरीका ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। Session is open for discussion. If anybody is having doubt, they can ask. नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जालंधर बंद लगाने के लिए क्या हमें साधना की जरूरत है, या फिर जस्ट हम ऐसे ही हाथ रख करके उस स्थान को पहचान सकते हैं? और जो आपने कहा कि जालधिरा पे हम जालधिरा जब बंद लगा देते हैं तो वहां पे सिराओं का अवबंध कर लेते हैं, तो ये तो एक आप समझ पाए क्योंकि आप उस गुरु शिष्य परंपरा में हैं। अगर कोई दूसरा वैद्य जो इस गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है, क्या उसको ये समझने में साधना की जरूरत है, या फिर किस अनुभव की जरूरत है जिसके चलते हम लग गया है कि नहीं ये जांच पाएंगे? आपका प्रश्न अच्छा है कि भाई इसमें कोई साधना, मैं कोई योगी नहीं हूँ, मुझे एक प्रकार का सिर्फ जालंधर बंद योग आता है, वो भी मरीज के ऊपर लगता है, मेरे ऊपर नहीं लगता है। तो वो टेक्निक है एक प्रकार की जो मुझे आती है, और मैं काफी लोगों को सिखाता हूँ। तो इसके कारण वो आपको सिर्फ डेंटल का नॉलेज होना चाहिए कि क्या कौन सा दांत निकालने लायक है कि नहीं है, और डेंटल का जो ये दांत उखाड़ने का तरीका है वो आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। बाकी कोई साधना वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर तो वो ट्रेनिंग ही है एक प्रकार की। तो जो जैसे आप बाकी सब चीजें सीखते हैं मेडिकल लाइन में, उसी तरह ये एक टेक्निक है, वो सीख सकते हैं। बराबर है। अगर जी सर, साधना करते बट तो इसको बहुत अच्छी बात है, साधना तो बहुत अच्छी बात है। सर, बट इसको क्या वो तो इसको होने पे सीखने सुहागा है। कितने दिन की जरूरत लगती है? अगर गुरु शिष्य परंपरा में जैसे आप सीखे, अगर कोई वैसा नहीं केवल आपके सानिध्य में अगर सीखना चाहे तो
कितने दिन का समय पूरा लगेगा? अगर जो यहाँ मेरे पास जो सीखने के लिए आते हैं, ज्यादातर डेंटिस्ट सीखने के लिए आते हैं, तो डेंटिस्ट को क्या है कि डेंटल का बैकग्राउंड सब पता है, तो वो तो 10-15 दिन में सीख जाते हैं, मतलब 100-200 मरीज देखते हैं तो सीख जाते हैं। अगर आयुर्वेद डॉक्टर को आया तो 3 माह में करीब करीब उनको डेंटल का प्राइमरी नॉलेज और ये जालंधर बंद हम सिखा सकते हैं। करीब 3 महीना तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो डेंटल का कुछ न कुछ नया जो भी देखना है उनको, कौन सा दांत कैसे निकालना वगैरह, और कौन सा दांत निकालना कौन सा नहीं निकालना, वो थोड़ा डिटेल उसको पता होना चाहिए। इसीलिए 3 महीना करीब करीब आयुर्वेद डॉक्टर को लगता है। मेरे पास जो भी आते हैं काफी सीखने के लिए भी, उनमें से डेंटिस्ट आते हैं तो वो तो 10 दिन में, बाकी उसको सब कुछ पता होता है, दांत उखाड़ते भी है, इसका अनुभव भी होता है, तो वो सब सीख जाते हैं। इनमें भी करीब करीब आयुर्वेद डॉक्टर जो आते हैं उनको 3 महीने में जालंधर बंद सिखा सकते हैं। हमारे पास जो साल भर के जो स्टूडेंट आते हैं उनको तो बाकी टेक्निकल काम, दवाई वगैरह सब सीखते हैं, इसलिए उसको देर लगती है थोड़ी। धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए जयशुखजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, बहुत सुंदर ढंग से आपने जो है। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। मकवाना सर, मैंने आपका सेशन सुना, बहुत ही अच्छा था सर आपका डिस्क्रिप्शन, और स्टूडेंट्स के लिए तो इट इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस सर, और बहुत बढ़िया आपने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। और Thank you. जितनी भी क्वेरीज हैं सबकी, डॉक्टर रिया और डॉक्टर जितिका को मैं बोलूंगी कि आप प्लीज सर को फॉरवर्ड करिए, ताकि सर इसका प्रोएक्टिवली आंसर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को मैं इन्फॉर्म करना Thank you. चाहूंगी, सभी शिष्य या गुरुओं का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे में बहुत अच्छी भागीदारी पेश की, और आरएवी ने मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स के साथ उस दिन योगा किया, तो हमने भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इट इज लाइक मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस इंटरनेशनल योगा डे, सो वेरी मच थैंकफुल। और हमने एक टीम की तरह काम किया इस बार, सभी स्टूडेंट्स ने और गुरुओं ने एक टीम की तरह हम लोग सारे एकत्रित हुए और हमने किया इसमें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा इस बार के हमने नोटिस किया है कि हमने जो हाफ ईयरली एग्जाम्स लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो उसका जो पैटर्न है वो गुरु डिसाइड करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इस बार जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा वो आरएवी से आपको मिलेगा, और उसकी जो चेकिंग होगी वो गुरु करेंगे, आपकी इवैल्यूएशन गुरु करेंगे, बट एग्जामिनेशन पैटर्न विल बी सेट बाय आरएवी। तो आपके 2 एग्जाम्स होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम अभी अगस्त में हम लोग करवाएंगे, और आपको इसका नोटिफिकेशन भी हम शेयर करेंगे। इट इज मैंडेटरी टू गेट गुड रिजल्ट इन दैट, और वी एक्सपेक्ट दैट यू विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स इन दैट। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो एक साल आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ये आपको लर्निंग के लिए दिया है। शायद आपको लाइफ में दोबारा ये चांस ना मिले, इतने अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रह के आप सीख पा रहे हैं स्टूडेंट। तो जितना ज्यादा आप सीख पाएंगे, जितना ज्यादा क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में आपका एक्सपोजर रहेगा, तो इट विल लेटर ऑन इन योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सो विद ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। डॉक्टर रिया। धन्यवाद मैम। Yeah, please If continue. anybody Thank you. if anybody is having doubt, they can ask please. अगर किसी के पास भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। धन्यवाद सर। आयोजन समिति की ओर से मैं वैद्य जयसुख मकवाना सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सर, जो आपने टूथ एक्सट्रैक्शन विदाउट एनेस्थीसिया के टॉपिक पे हमें मार्गदर्शन किया। इस विषय पर आपके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे गुरु देवेंद्र त्रिगुणा जी का अध्यक्ष आरएवी को उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारी निर्देशिका डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम को धन्यवाद देती हूँ, जो आरएवी के सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक हैं। मैं आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजेश कटोचा सर का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो उनकी भागीदारी और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद करती हूँ। अगला सत्र 3 जुलाई को होगा। आशा है कि अगले गुरुवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और धन्य रहे। आयुर्वेद सीखे।
धन्यवाद सर। सभी को मेरा धन्यवाद।